Hello everyone. In today's video, we will learn about reservation in India. सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन पर स्टे लगा दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं इन द मेजर सिटीज़ ऑफ महाराष्ट्र लाइक पुणे एंड कोल्हापुर. Also, the Maharashtra government has filed plea for lifting this stay order. We will know about reservation system in India, the caste system, and pros and cons, and many more things related to them in this video. An academy has brought prelims revision carnival for all the UPSC aspirants and the classes have started on 5th of September. An academy आपके लिए UPSC Championship 2.0 लाया है, that is an all India free mock test series on the basis of prelims paper 1. इस टेस्ट के स्कोर के बेसिस पर आपको मौका मिलेगा यूपीएससी सिविल सर्विस 2019 के टॉपर से मिलने का, टॉप अन अकेडमी एजुकेटर से मिलने का. साथ ही द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू आर गेटिंग थ्रू दिस टेस्ट इज अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप. So do enroll now and apply for the test on 27th September. An academy is standing at your door with all these benefits in just one subscription. Unlimited access to all the courses by top educators of India on one platform. Regular doubt clearing sessions, answer writing sessions would be there. Study material would be provided in PDF format and आपको एक personal mentor या guide भी दिया जाएगा. Also, live test series would help you in analyzing your preparation. आपको ये सारे benefits मिलेंगे with just one subscription on an academy. Just like UPSC doesn't keep any language barrier, so an academy has brought different kinds of courses. Like for all those who are comfortable in English, they can apply for English courses, and जिनको हिंदी में तैयारी करनी है वो हिंदी के classes लगा सकते हैं. And there are also bilingual courses. So when you are subscribing, do not forget to apply the code SIMPLEYT for getting 10% extra off. आप सभी को पता है करंट अफेयर्स एक मेजर पोर्शन होता है यूपीएससी प्रिपरेशन का, इसीलिए अन अकेडमी आपके लिए डेली 7:30 पे 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट कंडक्ट कराएगा 20 मिनट के लिए, जिसका स्कोर आपको आउट ऑफ 40 दिया जाएगा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट रिपोर्ट कार्ड यू कैन एनालाइज योर प्रिपरेशन. सो डू join our channels by clicking these links. Now let's get started with our topic, that is reservation. So what is a reservation? देखिए, अगर हम definition की बात करें, like अगर हम बोले कि किसी को हमें formally समझाना है, what is reservation? We will say that reservation is reserving access to seats in government jobs, educational institutions and even legislatures to certain sections of the population. Okay, this is a well defined स्टेटमेंट. ओके, तो इसका अगर हम मतलब देखें कि क्या इसका मतलब है, तो मतलब ये होगा कि कुछ ऐसे सेक्शंस है जिनको, वो कौन से सेक्शंस है वो हम देखेंगे. तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे, जिनके लिए हम सीट्स रिज़र्व करेंगे जब वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, जब वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे या फिर लेजिस्लेचर में पार्ट लेने आएंगे. ओके, तो उनके लिए सीट्स रिज़र्व होंगे. वो क्यों होंगी, कितनी सीट्स रिज़र्व होंगी, कौन से ऐसे सेक्शंस है या कम्युनिटीज़ है जिनको हम रिजर्वेशन देंगे, किस बेसिस पे देंगे, वो सब हम देखेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, तो वो जो कम्युनिटीज़ है उनको रिजर्वेशन देने की क्या ज़रूरत है? उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, और बाकियों को क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि these sections were exposed to social and historical injustices. They faced discrimination on the basis of caste. अब आप समझ गए होंगे, अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है then it is based on the caste. तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है कास्ट सिस्टम की. ठीक है, कास्ट सिस्टम को हम जानेंगे इस वीडियो में. ऑल्सो see, it's not like somebody asked for the reservation and the constitution gave the reservation, or somebody was demanding it so constitution just gave it.
No, it's not like that. You know how it's a well thought uh, process. Like for many years, people, the sections, the communities have been analyzed. They have been recognized on the basis of various criterias, and then they were backed by Indian constitution. Okay, so these communities, some of the communities which are getting reservation are लाइक अगर हम आज की बात करें तो कुछ कुछ कम्युनिटीज़ है जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, SC BC मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज़, देन द अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड EWS, ये 2019 में ही ऐड हुआ है, दैट इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. तो इनको रिजर्वेशन हमने किस किस लिए दिया है वो आपको समझ आया, लाइक थोड़ा बहुत तो समझ आया. ओके, देन the major problem was they were not given the access to the facilities, to the opportunities, and they were not given that level. They were not allowed, they were restricted to reach that level where some other upper classes were. Okay, so basically for adequate representation of any backward class of citizens under state services. Okay, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस है वहाँ पे रिजर्वेशन है. क्यों? फॉर द एडिकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच क्लासेस. ओके, तो ऐसा है कि अब SC ST OBC EWS, जो SC ST को अगर ये नहीं है, मेन मोटिव इज नॉट गेटिंग जॉब्स फॉर देम. Okay, but to ensure their participation in decision making process of the state, of the government, so that they do not feel alienated, they do not feel discriminated. Okay, there are communities who have faced untouchability. This reservation system was brought in to end, to eradicate that practice, to eradicate that bad practice of untouchability. Okay, and there was no concept like creamy layer when this reservation was brought in, when this reservation this was implemented. Okay, when तो उस टाइम पे कुछ और था रिजर्वेशन, और आज जो रिजर्वेशन है इट्स समथिंग एल्स. तो OBC के लिए कब शुरू हुआ? BP मंडल. ओके, दीज नेम्स यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, लाइक आई एम टेलिंग यू, इट स्टार्टेड विथ SC ST बेसिकली इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, SC ST, देन इट केम टू OBC, उससे रिलेटेड कुछ नाम है, BP मंडल कमीशन याद रखना है आपको. देन देर आर मैनी केसेस लाइक इंदिरा सानी, वी विल लर्न अबाउट दैम. देन EWS, ये 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, तो ये जनरल क्लास के लोगों के लिए. अब हम देखेंगे दैट व्हाट परसेंट ऑफ रिजर्वेशन कोटा. तो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमने देखा, गवर्नमेंट जॉब्स में मिलेगा रिजर्वेशन. देन लेजिस्लेचर्स में, ये 3 ऐसे एरियाज है जहाँ पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है. ओके, देन देयर इज दिस कैटेगरी ऑफ पीपल हु गेट 3% रिजर्व्ड सीट्स इन ऑल द अबव इंस्टीट्यूशंस, and they are called differently abled people. ठीक है, then the reservation category ST, they get reservation quota of 7.5%, then the SC 15%, OBC 27%, EWS 10%. So approximately 60% reservation quota, and the 40% is merit. So this is the system in India. Then how reservation was accepted? Okay, and how do we say it? What is the definition that we know? So definition is, reservation is quota based affirmative action. Affirmative action means it is accepted by a lot of people. Okay, a lot of people of the country. So it is accepted by a lot of people, and it is positive discrimination. See, discrimination, it is discrimination, but it is a positive discrimination. Why? Because see, these are the people who faced injustices, who faced discrimination. ठीक है, these were the people who were denied access to opportunities.
resources, facilities that some other upper class people were getting. So the constitution, it came up with a step. Okay, these people were walking behind the path, walking behind the stairs on which the other upper class person was, it was just climbing. ओके, तो इन लोगों को सपोर्ट देने के लिए, इन लोगों को उस लेवल पे लाने के लिए जहाँ पे वो बाकी लोगों से compete कर सके, क्योंकि वो पिछड़ गए हैं. ओके, बैकवर्ड क्लासेस, वो पिछड़ गए हैं. रीजन्स क्या थे? कास्ट सिस्टम वॉज द रीजन. ओके, सो द रिजर्वेशन इज द स्टेप for these people, for these sections to reach at the level where both the classes can compete and they could be judged on the basis of merit. ठीक है, on like they are at the same platform when they are judged on the basis of anything. ठीक है, तो here we see द बैकग्राउंड. ओके, अगर हमें रिजर्वेशन सिस्टम को समझना है, व्हाई इज इट गिवन, then what is the necessity and why other people are not getting it, then we need to understand the background, and the background is caste system itself. So caste system, we need to study that. Okay, so caste system, what is caste? Caste is जन और जाति. अगर कास्ट हम देखें तो बेसिकली इट इज़ अ स्पेनिश एंड पोर्चुगीज वर्ड विच मीन्स a race or a breed, but in Hindi, in Sanskrit, in India, we call it as jan or jati. Now jan means origin, birth. So it is something that is assigned to an individual at the time of birth itself. Okay, अगर आप पैदा हुए हो, then you are assigned a particular caste. See, there are several incidents that which are taking place in India on the basis of this caste system. Okay, against the caste system. See, recently there was a case के एक ऐसा person था, he doesn't want any caste tag. Okay, he wanted to be free from this caste tag, and in fact he got that he got some certificate जिसमें उसका caste नहीं लिखा था. Okay, so there are many examples, and we will see many more case studies as well. ओके, तो ये सब कास्ट सिस्टम से शुरू हुआ. अब कास्ट सिस्टम कैसे शुरू हुआ, ये हमें कैसे पता चला, या क्या क्या किस बेसिस पे कास्ट सिस्टम चलता है, लाइक व्हाट इज़ द बेस. सो देयर हैव बीन मैनी थियोरीज दैट हैव बीन पुट फॉरवर्ड. ओके, तो अब ये है कि पहली थियोरी जो आती है वो है ट्रेडिशनल थियोरी. ट्रेडिशनल थियोरी है तो इसको ट्रेडिशनल स्टोरीज़ होंगी, इसमें कल्चरल स्टोरीज एंड द रिलीजियस स्टोरीज वुड बी इंस्टॉल्ड इन दिस थियोरी. तो ट्रेडिशनल थियोरी है एंड दैट इज़ रिलेटेड टू डिवाइन ओरिजिन. ठीक है, हमारे जो ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के हेड से जो जिन्होंने जन्म लिया है वो हैं ब्राह्मण. उनके हाथों से जिन्होंने जन्म लिया है वो है क्षत्रिय. उनके थाइज से जिन्होंने जन्म लिया है, द पीपल हु हैव बीन who are considered to be originated from the thighs of Brahma, they are called Vaishya. Then there are people who are considered to be originated from the feet of Brahma and they are called Sudra. Then there is another caste of untouchables. ओके, तो ब्राह्मण जो होते हैं वो है प्रीस्ट, एकेडमिक्स, टीचर्स, इंटेलेक्चुअल्स. ठीक है, इनका काम क्या होता है? लोगों को पढ़ाना, ज्ञान देना. ठीक है, तो ये ब्राह्मण्स हो गए. देन क्षत्रिय, दीज वर वॉरियर्स एंड किंग्स, दे वर द फाइटर्स, दे यूज्ड टू फाइट फॉर द पीपल टू प्रोटेक्ट देम. ठीक है, तो ये हो गए क्षत्रिय. देन द वैश्य, वैश्य वर द पीपल हु ट्रेडेड, दे वर मर्चेंट्स, दे वर लैंड ओनर्स, दे वर बिजनेसमैन. ओके, they were traders. So then came the Sudra. What is the work of feet? Work of feet is to carry the whole weight of the body. Okay, they support the body. तो ऐसा था कि Sudra were the people who used to serve all other three classes. They were made to serve these classes. So they were commoners, peasants and servants. Then the untouchables were the people who were considered out of caste. They were street sweepers and drainage cleaners and
people who were engaged in dirty professions. ओके, सो दिस वॉज आर ट्रेडिशनल थियोरी. ट्रेडिशनल थियोरी में ऐसा था कि वर्ण सिस्टम समझते हैं आप. वर्ण सिस्टम आपने सुना ही होगा. एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल दैट देर इज़ दिस सीरीज कॉल्ड भारत एक खोज, लाइक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू. तो वो आपको देखनी चाहिए क्योंकि उसमें आपको ट्रेडिशनल थियोरी अच्छे से समझ आएगी. उसमें बहुत अच्छे से आर्यंस, नॉन आर्यंस, जो एंशियंट इंडिया है उसको बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है. जो मतलब मॉडर्न इंडिया को भी काफ़ी अच्छे से, लाइक स्ट्रगल तक को काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट किया गया है. तो ये हो गई हमारी ट्रेडिशनल थियोरी. ठीक है, तो ट्रेडिशनल थियोरी में हमने पढ़ा कि एक वर्ण सिस्टम है. ये बॉडी से ओरिजिन, मतलब बॉडी से ब्रह्मा की बॉडी से ये जो क्लासेस ओरिजिनेट हुए वो हमें समझ आ गया. देन देर इज समथिंग कॉल्ड वर्ण सिस्टम. वर्ण मीन्स कलर. तो कलर जो है, कलर के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करने लगे. ब्राह्मण कौन थे? ब्राह्मण कुटिया में रहते थे, उनके आश्रम में रहते थे. तो ब्राह्मण्स, दे वर फेयर. ओके, they had fair skin. Then the Kshatriyas, they used to fight, they used to go for wars, so they were exposed to sunlight, so they were darker as compared to Brahmins, but they were fairer than Vaishya. वैश्य थे, वो ट्रेड करने जाते थे मार्केट्स में अपना, लाइक दे वर मर्चेंट्स, दे वर लैंड ओनर्स, सो दे वर अ लिटिल मोर एक्सपोज्ड टू द सनलाइट एंड टू द outer atmosphere, so they had a darker skin than Kshatriya and Brahmins. Then Sudra, these were the people who worked, who served. Okay, these were the people who did the things that these three classes did not do. So they had a darkest skin as compared to all these three. तो कलर के बेसिस पे डिवीजन हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. और ये कैसे, एक तरीके से देखिए ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी डिवाइड ऐसे ही. ठीक है, तो अब जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम सिर्फ 4 थे. उसके बाद बाकी सारी जो कास्ट और ये सब कैसे जनरेट हुए? इंटर मैरिजेस. ठीक है, जब सब कास्ट जनरेट हो गए इंटर मैरिजेस करके, ठीक है, बिटवीन दीज 4 वर्ड्स. देन अब देखिए जो वर्ण है और कास्ट सिस्टम, ये दोनों अलग अलग है. ठीक है, वर्ण सिस्टम में था कि सिर्फ और सिर्फ 4 जातियाँ थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. अब उनको कलर और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड किया, 4 इन नंबर, एंड इट वाज ऑल इंडिया फिनोनिमा. ठीक है, ऐसा नहीं था कि एक रीजन में अलग वर्ण सिस्टम, इस रीजन में अलग वर्ण सिस्टम. इट वाजंट लाइक दैट. Then this system was relatively flexible as compared to caste system. Okay, and also see these varna system, they were free from socio-economic and political disabilities. तो ये वर्ण सिस्टम है. ठीक है, then we will know about the लेकिन here we are talking about caste system. So see, racial theory जो है वो रेसेस के बेसिस पे उसमें डिवाइड किया गया. कैसे किया गया? आर्यंस और नॉन आर्यंस. सी विद द अराइवल ऑफ आर्यंस there was a section of people that was called non Aryans, and they were the das. They were called das. Das were the people who served Aryans. Okay, and they were differentiated on the basis of speech, color, religious practices and physical features. ठीक है, तो ये ऋग्वेदिक लिटरेचर में हमें इसके जो मेंशंस मिलते हैं. देन इसमें भी क्या था? ब्रह्मा जो थे वो पोइट एंड प्रीस्ट थे. क्षत्र वर द वॉरियर्स एंड फाइटर्स. देन विस वर द कॉमन पीपल. शूद्र, ये ऋग्वेद में दिस वर्ड हैज अकर्ड फॉर वंस ओनली, लाइक ओनली फॉर वन टाइम. तो बट दीज वर द डोमेस्टिक सर्वेंट्स. ठीक है, अब रेशियल थियरी या ऋग्वेद की बात करें हमने तो उसमें था कि पुरुष सूक्त, उसमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में हमें इसके जो है कुछ फीचर्स मिलते हैं. देन मनुस्मृति में भी. व्हाट इज मनुस्मृति? ओके, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग. दिस इज अ धर्मशास्त्र.
Okay, you know there are two kinds of like more law called Dharma Shastra and Dand Shastra. तो मनुस्मृति दिस वॉज गिवन बाय मनु. दिस इज द रिलीजियस स्टोरी. लाइक जब अर्थ को क्लीन कर रहे थे गॉड, तब अर्थ पे एक पैर, लाइक मनु एंड हिज वाइफ, ओनली दीज टू पर्सन्स वर लेफ्ट विथ सम अदर क्रिएचर्स. ठीक है, जिससे कि जब अर्थ क्लीन हो जाए, पूरी अर्थ को क्लीन करने के बाद जो दोबारा से रीजेनरेशन होगा अर्थ का, उसके लिए कुछ लोग तो चाहिए होते हैं. सो मनु एंड हिज वाइफ, दीज टू पीपल वर लेफ्ट. तो मनु वॉज इंडियाज फर्स्ट लॉ गिवर ऑन रिलीजियस एंड सोशल कोड ऑफ कंडक्ट इन हिंदू लॉ. ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो वेद थे वो मनु को ही दिए गए थे बाय गॉड फॉर मेंटेनिंग द कोड ऑफ कंडक्ट इन हिंदू लॉ. ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट किंग टू एंड अराजकता, मत्स्य न्याय. फाइन. देन दिस इज रेशियल थियोरी. देन वी कम टू पॉलिटिकल थियोरी. पॉलिटिकल थियोरी से हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणिज्म is being at the top constantly. Okay, it is being supreme constantly. तो क्या था कि ब्राह्मण्स को, it is considered that caste system is basically a clever device that was used by Brahmins to stay at the top. ठीक है, कैसे? जो ब्राह्मण्स थे वो प्रीस्ट थे, टीचर्स थे, ऑब्वियसली ऑल द कैटेगरीज. ठीक है, उन सबको एजुकेशन तो चाहिए, तो वेयर वुड दे गो? दे वुड कम टू ब्राह्मण्स. क्षत्रिय, दे वर पावरफुल. तो क्षत्रिय से रिलेशंस अच्छे मेंटेन कैसे किए ब्राह्मण्स ने? फर्स्ट ऑफ ऑल एज टीचर्स. देन जब व्हेन द एकेडमिक्स वाज ओवर, तो उनको स्पिरिचुअल मेरिट करके एक अनादर कोर्स दे इंट्रोड्यूस्ड, सो दैट द क्षत्रियस दे रिमेन इंगेज्ड विद ब्राह्मण्स. तो ऐसे वो टॉप पे रहे. दे वर द स्ट्रॉन्ग, लाइक नॉट फिजिकली बट दे वर एट द टॉप पोजिशन. ओके, तो ये एक पॉलिटिकल थियोरी मानी जाती है. Also occupational theory, like I told you that people were divided on the basis of occupation. Those who were having the occupation, having respectable and better occupation, they were considered superior, while the others who were engaged in dirty professions like cleaning, sweeping, they were considered inferior. ठीक है. फिर आया हमारा एवोल्यूशन थ्योरी. जैसे जैसे इन्वेशन बढ़ता गया, फॉरेन इन्वेशन बढ़ता गया इंडिया में, एवोल्यूशन होता गया कल्चर्स का, ट्रेडिशंस का, क्लासेस एंड मैनी मोर थिंग्स. लाइक एक कल्चर आया यहाँ से, देन द इंडियाज ओन इट्स ओन कल्चर, द ओरिजिनल कल्चर इमर्ज होके कुछ और कुछ क्लासेस बने. देन देयर वर मैनी अदर कम्युनिटीज दैट बिगैन ओरिजिनेटिंग. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसा था कि बहुत सारे लोग, लाइक देयर वर मैनी फेमस पीपल हु वर अर्डेंट फॉलोअर ब्राह्मणिज्म. ओके, दे यूज्ड टू फॉलो ब्राह्मणिज्म. तो ये ऐसा था कि सोशल एवोल्यूशन चल रहा था एक तरीके से इंडिया में. तो इस चीज़ में जब एवोल्यूशन चल रहा था, तो देयर वर थिंग्स लाइक हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, ब्राह्मण्स ऑफ द एट द टॉप. Then the rulers were unwilling to bring uniform standard law. See, the caste system existed because of these things. Okay, because of the desire of Brahmins to remain at the top, because of the hereditary occupation, the karma and dharma doctrine. अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट में जन्म लेते हैं तो आपका धर्म, यू आर बाइंडेड विथ सम नॉर्म्स. ओके, एंड यू आर फोर्स्ड टू फॉलो दैट. हमने महाभारत में भी देखा था कि कर्ण, बिकॉज ही वॉज बॉर्न इनटू दैट कास्ट, इनटू दैट क्लास, दैट कैटेगरी. तो उस कुछ बहुत सारी, आई होप यू माइट हैव सीन, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो करने के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया. ठीक है, और जो भी वो उसके अगेंस्ट, उससे बाहर आके करना चाहता था, वो नॉर्म्स को तोड़ के वो करना चाहता था, उसको अधर्म बताया. फाइन. लाइक दैट कास्ट सिस्टम वाज एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम ऑल्सो. तो ये हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है एक तरीके से कास्ट सिस्टम. ठीक है, तो देर वर क्लैशेस ऑफ कल्चर, रेसेस, कलर एंड प्रेजुडिशेस.
तो ये हो गई हमारी एवोल्यूशन थियोरी. Then see, according to Anderson and Parkin, caste is that extreme form of social class or organization in which the position of individuals in the status hierarchy is determined by descent and birth. Okay, like I told you that it is assigned to the person at the time of birth itself. So caste is the ethnic feature. Then Dr. Gurrias states, caste is a Brahminic child of Indo-Aryan culture cradled in the land of the Ganges and then transferred to the other parts of India. See, Brahminic child. So here he is trying to say that it was political theory. How? Because the Brahmins, the desire of Brahmins, their conspiracy to remain at the top. This was the clever device used by them to remain at the top, the caste system. Okay, so initially it was only in the land of the Ganges and then it was transferred to the other parts of India. Fine. And according to Newfield, function and function alone is responsible for the origin of caste structure in India. ठीक है, तो occupational theory के हिसाब से देखें then the kind of occupation they are engaged in, the work they do, that is the only thing responsible for the origin of caste structure in India. Okay, with functional differentiation there came in occupational differentiation and numerous subcastes such as lohar, blacksmith, chamar, tanner, teli, oil pressures. ठीक है, so later subcastes were formed from the caste itself. Then Chinese scholar Yuan Sheng, who visited India in 630 AD, writes that Brahmanism dominated the country, caste ruled the social structure, and the persons following unclean occupations like butchers, scavengers had to live outside the city. Like I was talking about the kind of profession they are engaged in. Okay, if they are butchers and scavengers, they had to live outside the city. Okay, there are practices which exist even today, and these people are not allowed to enter the society, and they are basically outcast. Okay, so before moving into this part of history of reservation in constitution, before that we need to know that what happened actually before constitution. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब आ गया हम तब की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था. ठीक है, जब बहुत कि कास्ट सिस्टम क्या है बेसिकली, वो उससे कैसे रिजर्वेशन की ज़रूरत हो रही, पहले हम वो जानेंगे. तो ऐसा था कि जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं जो इंडियन कास्ट सिस्टम है, जैसे कि एंडोगामी इज़ व्हाट मैरिंग विद द पर्सन ऑफ योर सेम कास्ट और सब कास्ट. ठीक है, तो ये एंडोगामी है और इसको एक तरीके से रेशियल प्योरिटी भी माना जाता है. हाइपरगामी किसी अपर कास्ट से शादी होना लोअर कास्ट की, एंड लोअर कास्ट की शादी कर लेना किसी अपर कास्ट से. सो दीज आर द टर्म्स. देन गोत्र एक्सोगामी, देयर आर मैनी टर्म्स लाइक दिस. ठीक है, तो कास्ट जो है वो बर्थ के टाइम पे ही असाइन कर दी जाती है, तो वो एक तरीके से एथनिक फीचर हो गया. देन देयर आर सो मैनी कास्ट, लाइक न्यूमरस कास्ट. देन सब कास्ट, इट्स नॉट लाइक वर्ण सिस्टम में सिर्फ 4 ही जाती थी. Then the regional variations, then based on linguistic differentiation, जैसे जैसे आप regions to regions बदलेंगे वैसे वैसे कास्ट सिस्टम बदलता जाएगा. ठीक है, जो कास्ट आप सदर्न इंडिया में आपको मिलेंगी वो नॉर्थर्न इंडिया में नहीं मिलेंगी. ओके, सो वेरिएशंस आर देयर इन कास्ट सिस्टम, लेकिन वर्ण सिस्टम में ऑल इंडिया फिनोमेनन इट वाज, है ना. लिंग्विस्टिक डिफरेंशियल्स, देन द रिजिड प्रिंसिपल्स. ठीक है, this system is not flexible. Rigid principles and less mobility is there in caste system, imposes so many restrictions on members. ठीक है, then they bind you to the norms of that particular caste, and you are not allowed to run away. Like the caste system, these norms are like shackles. ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि इसके कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी. अब आप बोलेंगे कास्ट सिस्टम के फ़ायदे कैसे हो सकते हैं. सी, यूपीएससी एस्पिरेंट नीड टू नो दैट व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स. तो अब ऐसा है कि जो कास्ट सिस्टम है, अब देखिए हम उसकी बुराई करना शुरू करें तो बुराई करते हैं पहले. ऐसा है कि जो कास्ट सिस्टम है उससे
सबसे पहली बात तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, जो इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म जो होता है वो कन्फाइन हो जाता है कि आप इस पर्टिकुलर ग्रुप को वो शिक्षा नहीं दे सकते जो इस ग्रुप को देंगे, ठीक है। ये हो जाता है कि अब स्कैवेंजर्स और बुचर्स को क्या ज़रूरत है हायर एजुकेशन की, है ना। तो ये कास्ट सिस्टम में आ जाती है चीज़। तो ये मतलब इट्स इंस्टिल्ड इन द पीपल्स माइंड, है ना। जैसे एफिशिएंसी ऑफ लेबर, अब एफिशिएंसी ऑफ लेबर की हम बात करें तो मान लीजिए कि एक पॉटर है, उसका बेटा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम पॉटर के बेटे को अगर पॉटरी करनी है तो ऐसा है कि मान लीजिए उसको इंटरेस्ट ही नहीं, बट देयर इज़ अनदर पर्सन हु डजंट बिलोंग टू दिस क्लास बट ही इज़ इंटरेस्टेड इन पॉटरी एंड ही इज़ रियली गुड एट इट, लेकिन फोर्सफुली जो पॉटर का बच्चा है उसी को पॉटरी करनी पड़ेगी। सो दिस पर्सन इज नॉट अलाउड टू डू दैट बट ही कैन डू दैट in a better way than this guy is doing. Okay, so this is the loss of efficiency of labor. You understood that, right? And then there is political monopoly, like there is no competition in politics. Okay, it's like political monopoly, like we have seen the Brahmins, they remained at the top. Okay, nobody else is competing, it's just them. Then disintegrating factor, see, more than integration it brings disintegration. Caste system brings disintegration. How? There is discrimination, then there is inequality, then the divisions, and the many more things. Okay, so hardships on women have always been there. So in the caste system it increases to higher levels. जो लो कास्ट की वुमेन है उनके ऊपर ज़्यादा टॉर्चर्स होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, देयर आर मच मोर हार्डशिप्स, ठीक है। देन द रिलीजियस कन्वर्शन ऑफ लोअर कास्ट इनटू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को किसी उस कास्ट पे जो है वहाँ पे उसको डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, देन ही वुड थिंक ऑफ कन्वर्टिंग हिज रिलीजन. Okay, then caste system stands in the way of modernization by compelling an individual to follow their norms, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो आपको बांध देते हैं, आपको like you, if you are potter's son, you need to do pottery, these are the shackles, these are the norms. Okay, अगर आप किसी नौकर के बेटे हैं तो आपको नौकरी ही करनी है, but it's according to the caste system that used to prevail. Now see, there are good things about caste system, like caste system gives occupation monopoly. How? See, अगर एक अपर क्लास है वो लोअर क्लास को डोमिनेट कर रहा है तो पॉसिबली वो उसका जो ऑक्यूपेशन है, जो उसका लाइवलीहुड है वो भी छीन सकता है. ओके, एंड दीज, क्योंकि दीज आर वनरेबल ग्रुप्स, तो ये अनसर्टेनिटी है. तो इसके लिए जो कास्ट सिस्टम में ऐसा हुआ कि ऑक्यूपेशन मोनोपोली मिलेगा कि पॉटर का बेटा है तो वो पॉटरी कर सकता है. ओके, तो ऐसा है कि ये वाला जो हायर क्लास इंसान है वो पॉटरी नहीं करेगा. सो दिस इज सेफगार्डिंग हिज ऑक्यूपेशन. तो ये कास्ट सिस्टम से हुआ. देन द ट्रेडिशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, दीज वर मेंटेन्ड. देन चैनलाइजिंग द चॉइस इन मैरिजेस. तो ऐसा है कि मैंने आपको बताया था एंडोगामी. ओके, देयर इज अ प्रैक्टिस कॉल्ड एंडोगामी. तो गोत्र एंडोगामी एंड प्रोसेस लाइक दोज. तो उससे क्या होता है कि आपका चॉइस इन मैरिजेस वो चैनलाइज हो जाता है. ऑल्सो द हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स आर गिवन टू द बैकवर्ड क्लासेस पीपल. ओके, तो ऐसा है कि स्पेशलाइजेशन इन हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, लाइक आई टोल्ड यू. See, obviously the person who has been doing that same thing and there is their intergenerational occupation, then the specialization comes automatically. Okay, with specialization there comes the preservation of culture, traditions, quality of handicrafts improves, and you know India got its recognition because of these handicrafts. ओके, तो एक तरीके से देखें तो ये भी फ़ायदा ही है. फाइन.
Then see, racial purity, like I told you, endogamy. Fine. So see, we see that there are two sides of the coin. Similarly, the caste system is not all about negativity. There are some good things and there are some bad things. Like the things which are good for lower class people, then there are other things which are good for lower class people as well. So now we need to ask ourselves that does caste system exist only in India? The answer is no. Caste system also exists in Sri Lanka, Japan, Yemen, China, Nepal, some parts of Europe as well. तो सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस अगर हम लगाएं तो इंडिया में कल्चरल जो है वो कास्ट सिस्टम फॉलो होता है, स्ट्रक्चरल कास्ट सिस्टम फॉलो होता है जापान में. अब इसके टू ब्रांचेस है, यूनिवर्सलिस्टिक पर्टिकुलरिस्टिक. अब व्यूज़ अगर हम देखें तो कैसे है, जो स्ट्रक्चरल पर्टिकुलरिस्टिक है उसमें ऐसा है कि कास्ट सिस्टम इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली पर्टिकुलरली टू इंडिया. ठीक है, इंडियन सोसाइटी में ही, लाइक पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन सोसाइटी, एंड कास्ट सिस्टम एग्जिस्टेड ओनली देयर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल पर्टिकुलरिस्टिक. देन structural universalistic is the caste system in India is closed form of social stratification found across the world. मतलब ये चीज़ जो है, ये प्रैक्टिस है जो वो across the world फॉलो की जाती है, लेकिन इंडिया में बस उसका एक फॉर्म इंडिया ने अडॉप्ट किया है, एंड देन विथ फ्यू चेंजेस इट्स अ क्लोज्ड फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन that are happening around the world. Then there is a sociological approach called cultural universalistic. See, जो गुर्रे थे, हमने देखा था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, उनका कहना था that the caste system, like the caste is treated on the basis of culture of stratification are found in modern traditional society only. उनका कहना था जो social stratification है वो कल्चर के बेसिस पर जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, मोस्ट ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ है, वहाँ पर ही मिलेगा, ऐसा उनका कहना था. ठीक है, बट उससे पहले देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड मैक्सवेल एंड ही गेव हिज व्यू पॉइंट दैट इंडियाज कास्ट सिस्टम स्टेटस इज बेस्ड ऑन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन itself. Then Louis Dumont viewpoint was caste found only in India. Okay, caste system is found only in India. So caste system only in Hinduism? Then it's not like that. Okay, it exists in Nepalese Buddhism, Christianity, Sikhism, Islam as well. So the difference is, like I told you about Mahabharata, right? So it's like it existed in Hinduism and it's mentioned in scriptures, so it becomes religious institution, whereas in the other religions like Islam, Christianity, casteism is another practice that has been adopted, that has been instilled in the social religious practices. तो इसको एक तरीके से सोशल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे. अब जैसे कि इस्लाम में जो अपर कास्ट हिंदू है, अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट करते हो तो उनको अशरफ्स बोलते हैं. ये ही बाद में जाके दे बिकेम द पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ गवर्निंग बॉडीज ऑफ सल्तनत एंड मुगल एम्पायर. फाइन. तो जो मिडिल क्लास मुस्लिम्स होते हैं उनको अजलफ्स बोलते हैं. जो द क्रिश्चियन इन गोवा, हिंदू कन्वर्ट्स, दे आर कॉल्ड क्रिश्चियन मेमोन. देन क्षत्रिय वैश्य अगर कन्वर्ट करते हैं क्रिश्चियनिटी में तो उनको हम चारदोस बोलते हैं. ठीक है, शूद्रस को सुदर्स बोलते हैं, दलित्स को महर्स एंड चमार्स बोलते हैं. सी, दिस वाज द बेस ऑफ रिजर्वेशन. हमने देखा कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम की वजह से डिस्क्रिमिनेशन है. अब उस डिस्क्रिमिनेशन को करेक्ट करने के लिए हम लेकर आए कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, 1882 में ज्योतिराव फुले और विलियम हंटर ने सजेस्ट किया था कि क्यों ना हम रिजर्वेशन दें ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर कास्ट है, उसको ज़रूरत है रिजर्वेशन की, तो क्यों ना हम रिजर्वेशन दें ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही दिया जाना चाहिए, उस समय ज़रूरत थी. ठीक है, you know things have to be changed with the change in time. तो ऐसा ही था कि उस टाइम पे ये ज़रूरत महसूस हुई कि ये कास्ट के लोगों को, लाइक ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कास्ट
they are treated unequally, so they should be reserved, like the seats फॉर देम शुड बी रिजर्व। तो अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जब बनना चालू हुआ तो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन किया गया, पूना पैक्ट करके, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि एक हिंदू इलेक्टोरल बनेगा विथ रिजर्वेशन। ठीक है, अलग अलग इलेक्टोरल नहीं बनेंगे कि माइनॉरिटीज़, हिंदू, मुस्लिम, देन द बाकी सिक्स, सबके अलग अलग इलेक्टोरल्स नहीं बनेंगे, बल्कि सिर्फ एक इलेक्टोरल बनेगा जहाँ पे बाकी सारे कम्युनिटीज़ को जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, जो माइनॉरिटीज़ है, उनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। ओके, तो सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर SC/ST कम्युनिटीज़ ओनली एंड ओनली फॉर 10 years। अब ये कहाँ की बात हो रही है? लेजिस्लेचर की। ठीक है, लेजिस्लेचर में सबसे पहले SC/ST कम्युनिटीज़ को सिर्फ 10 सालों के लिए सीट्स रिजर्व करके दी गई। उसके बाद अमेंडमेंट्स चालू हुए आना। कैसे कैसे? 1951 में पहला अमेंडमेंट आया। कब आया? जब कोर्ट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती दुरईराजन केस सामने आया। ठीक है, तो इस केस में जो था, इसमें उनका ये कहना था कि नॉट ओनली इन लेजिस्लेचर, in fact in government jobs also these communities should get reservation। ठीक है, ये 1951 में SC जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट जॉब्स में भी आ गया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया कि ठीक है कि रिजर्वेशन आएगा गवर्नमेंट जॉब्स में। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 प्रोवाइड्स रिजर्वेशन इन दिस लाइक अमेंडमेंट। तो उसमें किसको अमेंड किया गया था? जो आर्टिकल 15 है उसको आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में अमेंड किया गया। जो आर्टिकल 16 है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द इंडिविजुअल्स इन गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो इसका ये नहीं है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, हम बस क्लॉजेस ऐड करते गए। ठीक है, अगर हम कोई आर्टिकल है उसको अगर हमने ध्यान से पढ़ा, देन ऐसा हो सकता है कि हमें उसमें एक वर्ड दिखे जिससे एक और क्लॉज बनाएंगे एंड उस क्लॉज के बेसिस पे एक नया लॉ बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हो गया। फिर क्या हुआ? सेकंड जो इवेंट था वो था बीपी मंडल कमीशन 1990 रिपोर्ट। अब देखिए, बीपी मंडल कमीशन बनाया गया मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा 1979 में। 1980 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद ज़्यादा काम नहीं हुआ उस पर, लेकिन वीपी सिंह जो प्राइम मिनिस्टर बने 1990 में उन्होंने फिर डिसाइड किया, जो रिकमेंडेशंस दिए थे बीपी मंडल कमीशन ने, क्या रिकमेंडेशंस दिए थे? उन्होंने ये बोला था कि इंडिया में 52% ओबीसीज एग्जिस्ट करते हैं, जिनको 27% कोटा की ज़रूरत है। ठीक है, तो किस बेसिस पे उन्होंने ये रिकमेंड किया? उन्होंने एक प्रॉपर एनालिसिस रिपोर्ट बनाई थी, जो उस पर क्राइटेरियाज थे सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक। ठीक है, सोशली उन्होंने कैसे चेक किया? जो भी कास्ट बेस्ड नॉन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया था कि कितने लोगों को कास्ट के बेसिस पे एक्सेप्ट नहीं कर रही है सोसाइटी। देन द मैनुअल लेबर, देयर लाइवलीहुड। तो ये देखे तो हम सोशल इंडिकेटर्स बने थे, इनको स्टेट एवरेज के से कंपेयर किया गया था। ठीक है, फिर आया हमारा एजुकेशनल, कितने लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, कितने ड्रॉप आउट है, कितने हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, देन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के जो असेट्स है, फैमिली असेट्स है, कच्चा हाउस, देन हाउ मेनी पीपल आर सर्वाइविंग ऑन लोन्स, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। तो इन सब के बेसिस पे रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और वीपी मंडल ने अनाउंस कर दिया दैट 27% कोटा वुड बी गिवन इन द गवर्नमेंट जॉब्स टू ओबीसी। तो इसके बाद काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में, और साउथ इंडिया में भी हुए, लेकिन कम हुए। क्यों कम हुए? इसका रीज़न ये है कि नॉर्थन और जो वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पे अपर कास्ट लोगों का जो सम था दैट वाज 20%। ठीक है, वाइल इन सदर्न स्टेट्स इट वाज 10%। ऑल्सो सदर्न स्टेट्स में जो लोग थे वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स पे उतना डिपेंड करते ही नहीं थे जितना नॉर्दर्न और वेस्टर्न में करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा था, एंड सो दे वर ऑल्सो हैविंग द ऑप्शन ऑफ दिस प्राइवेट जॉब्स।
ओके, फिर आता है हमारा इंदिरा साहनी केस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ था। क्यों? इसमें ये हुआ था कि जो कि आपने रिजर्वेशन दिया है गवर्नमेंट जॉब्स में, अब उनको उसके अंदर आके भी, जॉब्स के अंदर आके भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। ओके, दे आर नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ द कास्ट, देन they are not given the adequate representation in the public employment because of their caste. तो extent of article 16 clause 4 that is reservation in appointments in government and state services, फिर उसमें 4A बनाया गया। उसको कैसे बनाया गया? प्रमोशन भी दिया जाएगा SC/ST को if they are not adequately represented. ऑल्सो इंदिरा साहनी केस के ही वर्डिक्ट में जो रिमार्केबल डिसीजन था, क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी वुड बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, जो भी क्रीमी लेयर क्या हो गया? इनकम बेस्ड, इनकम एंड सोशल स्टेटस। ये आपके, अगर आप द क्रीमी लेयर हियर मीन्स दैट यू आर इकोनॉमिकली वेल ऑफ, देन यू आर ऑल्सो लाइक एजुकेशनली फॉरवर्ड एंड सोशली यू आर एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये क्रीमी लेयर में आ जाते लोग, तो इनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा फ्रॉम द रिजर्वेशन कोटा। तो रिजर्वेशन सिर्फ 50% होने चाहिए, एंड 50% शुड बी मेरिट। तो ये हमारा डिसीजन इंदिरा साहनी केस में आया। 2006 में नागराज केस। ठीक है, नागराज केस में क्या हुआ था? 16 क्लॉज 4A बना था, दैट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ओनली इफ, ठीक है, आप प्रमोशन दे रहे हैं, ठीक है फाइन, लेकिन कब दे रहे हैं? ओनली इफ SC/ST सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, ओनली इफ दे आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, and there should be no effect on overall efficiency of administration. See, there is no chance that you can compromise on the efficiency of administration. That is the leading body, that is the leading executive body. Fine. Then came Jarnail Singh and Lakshmi Narayan Gupta 2018. ये तो रिसेंटली हुआ था। इसमें क्या होता? OBC को हटा दिया क्रीमी लेयर में इंदिरा साहनी केस में। फिर उसके बाद प्रमोशन आप सभी को नहीं दे सकते। फिर अब जर्नैल वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, इसमें क्या हुआ था कि देर इज़ नो नीड टू सिलेक्ट क्वान्टिफाइबल डेटा ऑन बैकवर्डनेस ऑफ SC/ST। ठीक है, क्वान्टिफाइबल डेटा कलेक्ट नहीं करना है आपको। देन द क्रीमी लेयर शुड बी एक्सक्लूडेड इन द SC एंड ST कम्युनिटीज एज वेल। क्यों? अब जब OBC के क्रीमी लेयर को हटाया, देन व्हाई नॉट SC/ST, राइट? जस्ट बिकॉज यू हैव अ टैग, you do not have the right to you do not have that right to get reservation just because of the tag. The reservation is for the people who really need it, who are underprivileged. Okay, then there should not be promotion to such people. In this verdict, it was also announced that there should not be promotion to such people. So this is basically the analysis of reservation in India. Then in 2019 economically weaker section introduce किया गया for general class people. 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा EVS वालों को। कैसे? जिनकी भी ग्रोस फैमिली इनकम 8 लाख से कम होगी। ग्रोस फैमिली इनकम मतलब इंक्लूडिंग ऑल योर इनकम सोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, लाइक बिजनेस एंड सैलरी एक्सेट्रा। तो और सारे सब इनकम सोर्सेज को मिला के 8 लाख से कम होना चाहिए। देन लैंड एरिया जो है वो 5 एकर्स से कम होना चाहिए आपका, एग्रीकल्चरल लैंड एरिया। एंड ऑल्सो रेसिडेंशियल प्लॉट एरिया का भी लेस देन 1000 स्क्वायर फीट, लाइक दैट। तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा बाय DM और ADM और तहसीलदार और रेवेन्यू ऑफिसर। इसके बेसिस पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा। एंड लाइक ऑल अदर लाइक SC/ST OBC 10% रिजर्वेशन यू वुड बी गिवन, एंड लोअर कट ऑफ मार्क्स वुड बी देयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि कैसे कैसे नए अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस होते गए, जैसे जैसे वर्डिक्ट्स आते गए, केसेस होते गए। सो see, still the demands of reservations are increasing. Why? Because of agrarian distress. See, all those who are demanding these reservations, they belong to the section of the society who are mainly dependent on agriculture. वो फार्मिंग करते हैं, वो क्रॉप्स बेच के ही उनका लाइक इनकम आता है।
ठीक है। अब उनकी इनकम कैसे आती है? क्रॉप्स बेच के। तो उसके लिए एग्रीकल्चर जो होना चाहिए, जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स होने चाहिए वो फास्ट करने चाहिए। ये सब किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। बट गवर्नमेंट इज रनिंग अवे इट्स रनिंग अवे विथ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को लाने हैं, लेकिन वो क्या ला रही है? रिजर्वेशन को लोगों के दिमाग में डाल रही है। दैट्स नॉट राइट। ओके, सो द गवर्नमेंट इज एट फॉल्ट हियर. Just for the vote banks, they are instilling this idea of reservation in the minds of the people. Okay, they are misleading the people. So एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस मतलब आप जो भी आपकी उपज है, जो भी आपका लैंड है, आपको पुअर फार्म इनकम मिल रही है, ऑल्सो जो प्राइजेस मिल रही हैं आपको आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए वो एडिकेट नहीं है, ठीक है, लो है, उसकी वजह से एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस जनरेट होता है एंड दे फील द नीड टू हैव रिजर्वेशन. फाइन. इसीलिए मराठा कम्युनिटी, जाट कम्युनिटीज़ एंड पाटीदार कम्युनिटीज़ दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली डिमांडिंग रिजर्वेशन. Then upper caste feeling unprivileged. See, these upper caste people are also demanding reservation. Why? Because अगर एक बंदा है जो जनरल कैटेगरी का है, दूसरा बंदा है जो SC/ST कैटेगरी का है, एंड दे आर एट द सेम लेवल. ओके, सेम लेवल इकोनॉमिकली, then socially, like in today's India, socially equal, and then educationally. तो ये दोनों सेम, बस इसके पास SC/ST का टैग है एंड दिस इज अ जनरल क्लास स्टूडेंट. ठीक है, तो दिस पर्सन इज गेटिंग इनटू द इंस्टीट्यूशन. हाउ? बिकॉज ही हैज़ रिजर्वेशन, द लोअर कट ऑफ, while the same person with same score is not getting into that institution. So the upper class people, they are feeling underprivileged. They feel like they are losing the privilege, so the demands are increasing. So basically the video is we are talking about the Maratha reservation. Okay, it started with the Maratha reservation. So Maratha, this is politically dominant community in Maharashtra, comprising mainly peasants and landowners. The nearly 1/3 of the population of the state. Okay, इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रही है कि जो रिजर्वेशन है उसको रहने दीजिए एंड इट इज़ फाइलिंग प्ली. Then historically identified as warrior caste, plays important role in rural economy. See, all the agriculture needs are dependent on these people. Then obviously they are playing the major role in rural economy. तो देखो अब इसमें क्या हुआ है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट 16% रिजर्वेशन दे रही थी मराठा कम्युनिटी को, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे अनजस्टिफाइबल बता दिया. क्यों? उन्होंने बोला कि ये इनवैलिड है. उन्होंने बोला दैट इंदिरा साहनी केस में क्या डिसाइड होता था? 50% मेरिट, 50% रिजर्वेशन. अगर आप 16% रिजर्वेशन देते हैं तो आप वो क्रॉस कर जाएंगे. सी, it's not like that. Not even a single state has crossed that limit. It has, like Tamil Nadu itself, and there are many other states जिन्होंने ये क्रॉस किया, बट दैट हैपन्स ओनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन. और यहाँ पे कोर्ट को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं दिख रहा है महाराष्ट्र में. तो उसने बोला कि आप 12% एजुकेशन में दीजिए, ठीक है, एंड 13% गवर्नमेंट जॉब्स में दीजिए. देन लेट्स कम टू द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट रिजर्वेशन सिस्टम. तो अगर हम फॉर में देखें तो इट्स लाइक इन द like in today's in our country, this system was basically introduced for the advancement of backward classes, right? तो जितने भी बैकवर्ड क्लासेस जो एक्चुअली बैकवर्ड हैं, ठीक है, दोज पीपल हु डू नॉट इवन नो दैट व्हाट इज रिजर्वेशन. Okay, then there are people who do not know that they have this wonderful book called Constitution that support them to reach at the level where they can compete with other people. Okay, they are not supposed to live like that. There are many underprivileged people who do not even know that there is a system
दैट इज सपोर्टिंग दैम। ओके, तो उन लोगों को हमें बताने की ज़रूरत है, उन लोगों को एडवांस करने की ज़रूरत है। जो लोग ऑलरेडी वेल ऑफ है उनको ज़रूरत नहीं है रिजर्वेशन की, फाइन। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। देन द हिस्टोरिकल इनजस्टिस, ओके, सो बैकवर्ड वो क्यों हुए? क्योंकि हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुए, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जिसकी वजह से दे लैग बिहाइंड। तो उसको करेक्ट करने के लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत है। Then equal representation in state services. See, these communities are part of our country, and they have faced discrimination, they have faced historical injustice, and because of that they did not get opportunities and facilities and resources to reach at the level where they could represent themselves in the state services, in the government services. ठीक है, तो उनके इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो ऑल द पीपल शुड बी ब्रॉट टू द सेम लेवल बिफोर जजिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और एनी अदर थिंग। ठीक है, तो उसके लिए भी रिजर्वेशन की ज़रूरत है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट अगर हम देखें, द डिविजन्स एंड एनिमिटी। ओके, जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, देयर इज एनिमिटी बिटवीन देम, देयर आर डिविजन्स बिटवीन देम। क्योंकि इन लोगों को नहीं पता दैट वाई दे आर नॉट गेटिंग द रिजर्वेशन, एंड इन लोगों को नहीं पता दैट वाई आर दे गेटिंग रिजर्वेशन। These reservations are not for the people who are already privileged, even if they belong to SC/ST community. इसीलिए क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट लेकर आए। ठीक है, द रिजर्वेशन इज फॉर द पीपल हु आर रियली अंडर प्रिविलेज्ड, either they belong to SC/ST और जनरल क्लास। ठीक है, तो इस सिस्टम को करेक्ट करने की ज़रूरत है। देन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, सी दिस इज़ रॉन्ग, एंड सी देर आर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को लेकर के, इसको हटाओ। एंड इसका मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज यू हैव द टैग ऑफ द कास्ट, just because even if you are privileged and you have that tag of the caste, you are getting reservation, and that is not right. And here the killing of merit, this should not be there. Okay, matlab there should not be any compromise with merit. Also narrow political views are being installed in this system. ठीक है, वोट बैंक्स बनाने के लिए रिजर्वेशन दिए गई, आपने हिस्ट्री में भी देखा। एंड उसी अभी भी लोगों को मिसलीड किया जाता है वोट बैंक्स बनाने के लिए इन द नेम ऑफ रिजर्वेशन। देन द लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। सी, अगर दो लोग हैं, एक जनरल कैटेगरी का, एक मान लीजिए SC/ST कैटेगरी का, ठीक है, अगर हम देखें तो ये दिस पर्सन रियली नीड्स रिजर्वेशन, बट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ही इज़ नो लेस देन दिस द अदर पर्सन। तो इससे क्या होता है, जब वो जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो उसके मेरिट के बेसिस पे लोग उसको इतना जज नहीं करते जितना रिजर्वेशन के बेसिस पे करते हैं। फाइन, सो दिस इज द लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। सो this beautiful picture, see, this picture should always be in your mind to understand the difference between equality, equity and liberty. See, reservation is the extra step that we are providing for the underprivileged people to reach at the point where the other people are. Okay, so that is equity. And equality is you have given the same like height of the step is same, that is equality. Then liberation is you आपने मतलब सब खुला छोड़ दिया है। ठीक है, आपने एक टेस्ट लिया, आपने टेस्ट में आने का मौका सबको दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अपर क्लास लोगों को वहाँ पे टेस्ट लेने का मौका दिया, या जिनके पास फैसिलिटी है उनको टेस्ट लेने का मौका। आपने बोला, आपने ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई हैं कि गांव से बच्चा आ सके, गांव से उसने पढ़ाई की, आपको उसको ऐसे एजुकेशन देना है, ऐसे फैसिलिटीज़ रिसोर्सेज देने हैं कि सेम तैयारी करे, वो सेम सब कुछ सेम करे, एंड देन यू जज देम ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. Okay, that is liberation. Then what are the way forward? See, being a UPSC aspirant, you should know that what you are going to do about the particular situation.
See, first one is underprivileged children from deprived caste. Yeah, they like, there are people who do not even know that what is actually happening. Okay, they are underprivileged. the the people who need the reservation badly, they need to know that there is something called reservation. Okay, they need to know the criteria. तो जो एक्चुअली डिप्राइव्ड है उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है. फाइन, नॉट सम प्रिविलेज्ड किड हु हैज़ दैट टैग ऑफ अ कास्ट. Then no reservation for high rank official, high income professionals. See, this is the thing that, see, these people are privileged. These are well off people economically, socially and educationally. So they do not need reservation. Then change in education policy. This is a basic thing, and this is the work that government should do. Okay, government should take proper course of action, like change in policy. अगर कोई गांव में बच्चा रह रहा है और कोई शहर में बच्चा रह रहा है, तो जो गांव वाला बच्चा है वो भी वही चीज़ें पढ़े, उसको भी वही रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए गवर्नमेंट जो कि एक शहर का बच्चा ले रहा है. ठीक है, सेम अपॉर्चुनिटी, सेम रिसोर्सेज. फिर जाके आप उनको जज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. अगर इस बच्चे को कभी वो रिसोर्सेज मिले ही नहीं है जो इसको मिला, देन यू कैन नॉट जज देम. ऑब्वियसली यू कैन नॉट जज देम. So this basic thing government need to take care. Then awareness generation. See, जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है उसे पता होना चाहिए कि उसको रिजर्वेशन मिल रहा है, and not because he belongs to that particular caste, but because in that particular community there are underprivileged people. Okay, they need to be awakened through the awareness programs by government. Then there are people who need to who need to know that there is a problem with giving a reservation to them. ठीक है, उनको क्यों नहीं मिल रहा, वो अवेयरनेस जनरेशन भी होनी चाहिए जिससे एनिमिटी खत्म हो एंड डिविजन्स खत्म हो. Fine, no pollution in meritocracy, financial aid to underprivileged. See, like we have seen in, like in that picture here, I told you this liberty here, there is no, first of all आपने दोनों को एक लेवल से जज किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. देन the financial the other person who is not financially sound, he is attracted with financial aid. ठीक है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनको financial aid से आपने अट्रैक्ट किया, not because lower cutoff marks and the age relaxation. These are not the actual ways. Okay, financial aid is a wonderful way to attract underprivileged. Okay, so this is the way forward. Fine. See, this statement is really important, like justice for backwards and equity for forwards. If the administration, the constitution, the country, the legislature, if they all follow this statement, then there would not be demands of reservation anymore, like justice for backwards and equity for forwards. See, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक कमेंट किया था जब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 50% रिजर्वेशन मांगा था ओबीसी के लिए इन द नीट एग्ज़ाम. सुप्रीम कोर्ट ने वंडरफुल कमेंट किया था दैट रिजर्वेशन, द राइट टू रिजर्वेशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट. ओके, तो ये एक बेहद उम्दा एग्जाम्पल है. ये स्टेटमेंट नॉट प्रूविंग एक्चुअली, बट ये स्टेटमेंट को ही फॉलो करना चाहिए. फाइन, to fight against that evil of reservation, right? So I guess this was all about reservation, and it is not that easy to understand. This was just a factual video जो आपको एक बेस तैयार करके देगा, but there is a lot to learn about reservation जो कि आप किताबों से नहीं सीख सकते. आपको जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट ले रही है, जो भी डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट ले रही है, रिमार्केबल डिसीजंस इन दीज एरियाज इन दिस फील्ड,
तो आपको उनको पढ़ते हुए उनको पढ़ते हुए यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, देन ओनली यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग this reservation which could come in mains exam. Yeah, so this was all about reservation, and I hope this video would help you. Thanks a lot.